Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you. Thank you to each and everyone for being here for us. I am Hadika Sheikh, today's host. I would like to welcome you all on the behalf of Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan for presentation competition of Prime Minister Youth Development Program students. The Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan was established on 23rd May 1951. Mohammad Shuaib was the founder of Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan. He was the former Finance Minister of Pakistan and also Senior Vice President of World Bank. Institute of Cost and Management Accountant of Pakistan always enhance the productivity and capacity of students by organizing several healthy activities to lead in professional life, and one of them is presentation competition. Ladies and gentlemen, now we formally commence the program with the name of Almighty Allah. Let's bloom the atmosphere with the fragrance of some Quranic verses. I would request Mr. Shuaib Ehrar to recite few verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Subhanallah. As we all know, we have gathered here for presentation skills competition organized by Institute of Cost and Management Accountant of Pakistan. Ladies and gentlemen, now we formally start our program with the introduction of our judges. We have Ma'am Naba Aslam, teacher of Financial Accounting Section B, and we have Sir Arsalan. Now we start, and now it's time to invite our first participant. I would like to call Mr. Muhammad Ahmed, and his topic is marketing. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. My name is Mohammed Ahmed, and today my presentation topic is digital marketing. What is digital marketing? Digital marketing or online marketing, that's what online marketing and offline marketing. What is digital marketing? Digital marketing means such as social media websites and
social media platforms. According to internet users, 57% of global population average use of in a single day 6 hours and 42 minutes, and according to projected rate of 2021, 73% of e-commerce business will come from mobile. Digital marketing platforms: Facebook, Google, LinkedIn and Instagram. Categories of digital marketing: Facebook marketing, Instagram marketing, LinkedIn marketing, Twitter marketing and Google marketing. Search engine optimization, SEO जिसे कहते हैं, और search engine marketing, SEM, Google Trends. Marketing techniques: planning and analysis, research and technology, brand identity, raising brand awareness, and interaction with key audience. What is search engine optimization? Search engine optimization is the content where a certain keywords which you rank your website or rank your online business on Google. Types of SEO: on-page SEO and off-page SEO. Why SEO is important? SEO के कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि स्मॉल बिजनेस और पोटेंशियल कस्टमर्स को दोनों को ही दिए जाते हैं। SEO बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो वो पोटेंशियल कस्टमर्स को आसानी से वो उस पर जा नहीं सकेंगे और प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकेंगे, आपका बिजनेस भी डाउन ही रहेगा। What is search engine marketing? Search engine marketing is a strategy of paid advertising where on first page of Google SERP disseminated. Types of SEMs: PPC, CPC cost per click, CPM cost per impressions. Next is what is Google Trends? ये डिजिटल मार्केटिंग का ग्राफ है जो कि नवंबर 2019-10 से लेके अक्टूबर 2020-11 तक का है। इसमें ये दिखाया गया है कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। और इसके कुछ सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं गूगल ट्रेंड्स के जो गूगल खुद प्रोवाइड करता है। उसकी भी कुछ टाइप्स हैं। एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो टाइप की होती है, अनपेड और पेड। गूगल ट्रेंड सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो पेड होती है, जिसकी मैंने आपको पहले भी ये टाइप्स बताई हैं, कॉस्ट पर इम्प्रेशन और CPC। Here are some attractive designs. ये कुछ अट्रैक्टिव सोशल मीडिया डिज़ाइंस हैं जिससे बायर जो है वो अट्रैक्ट होता है और आपकी प्रोडक्ट को बाय करता है। अंडरस्टैंडिंग द बायर नीड्स: सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि बायर का ऑक्यूपेशन क्या है और उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। और सेकंड, वो बायर उसकी परचेजिंग साइकिल देखनी होती है कि वो किस टाइम पे परचेज कर रहा है और किस टाइम पे परचेज नहीं कर रहा है। और सेकंड, वो किस तरह से परचेज कर रहा है, वेबसाइट के थ्रू कर रहा है, मोबाइल ऐप के थ्रू कर रहा है या फिर नॉर्मल मार्केटिंग करके कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किस तरह से होती है? इसके कुछ टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक आता है। हाउ ब्रांड्स वर्क ऑनलाइन: ब्रांड्स ऑनलाइन किस तरह से काम करते हैं? सबसे पहले जो भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसमें सोशल मीडिया पर जाने के लिए हमें कुछ पोस्ट डिज़ाइनिंग करनी होती है जो कि क्रिएटिव डिज़ाइन होने चाहिए ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। उसमें चूजिंग को फोटोज़ एंड क्रिएटिंग डिज़ाइंस, इफेक्टिव कॉपी राइटिंग जो कि SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्ट्स जल्द से जल्द गूगल पे रैंक कर सके इजीली। उसके बाद अपलोडिंग कंटेंट, आपको कंटिन्यू कंटेंट अपलोड करना होता है ताकि आपकी वेबसाइट डाउन ना हो, रैंक डाउन ना हो। और कनेक्टिंग विद फॉलोअर्स, आपको अपने फॉलोअर्स और कस्टमर्स के साथ कनेक्ट रहना होता है। इसके कुछ डिजिटल मार्केटिंग का कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस तो हैं आजकल, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव आ जाती है, मेजरेबल वे,
और इसमें भी लॉयल्टी आ जाती है। ब्रांड ड्राइविंग सेल्स ऑनलाइन, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप घर से बैठ के अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। इसके फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आजकल कोविड-19 की वजह से 70% बिजनेसेस जो है ना वो ऑनलाइन आ चुके हैं। इसकी वजह से कंपटीशन हाई हो गया है, टाइम भी कम कंज्यूमिंग है। कंप्लेंट उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके कंप्लेंट और फीडबैक पे। कस्टमर का कंप्लेंट और आपका फीडबैक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है बिजनेस में। अगर आपका फीडबैक अच्छा होगा तो वो आपका जो बायर है वो फिर आपका कस्टमर बन जाएगा लॉन्ग टाइम में। थैंक यू। ये बताओ आप क्या heard from present yourself? टाई आपने नहीं पहनी, आपको क्लास में समझाया गया, क्यों? पहले के शौक नहीं है। ये बड़े ऑफिसर होते हैं सर, पेंटर ऑफिसर, ये पागल है ना, इतना टाइम टाई पे लगाते हैं ऑफिस आने से पहले। ये सब ऑफिसर रैंक पे जाएंगे तो करेंगे। डेवलपमेंट घबराना आता है, किससे डेवलप? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए। ओके, और ये प्रेजेंटेटर को बुलाया था, रिटर को बुलाया था। आप कंटिन्यूसली, आपको क्लास में मैंने समझाया हमें रिटर्न नहीं चाहिए। रेडी करने के काम किसी को भी कर सकते हैं। पैर आपके सामने, इसमें जो मार्क्स होते हैं मटेरियल के जो हम मार्क्स रखते हैं वो हमें अल्फाजों का ज़ख़ीरा नहीं चाहिए होता। आप सिंपल एक हेडिंग लिखें, आप एक पिक्चर जो है स्लाइड पे छोड़ दें। मीन के आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए आपके पैरे के साथ, आपके टॉपिक के साथ, कि आप खुद प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, रीडर नहीं चाहिए होता प्रेजेंटेशन। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। I would like to call Miss Sayyeda Rida Fatma and her topic is leadership. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। To my respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Sayyeda Rida Fatma Jafri and I am from Financial Accounting Section B, and today I am here to deliver a presentation on leadership. What basically leadership is? दुनिया में जब खुदा ने इंसान को उतारा तो उसकी रहनुमाई का सामान उसके आने से पहले ही कर दिया। खुदा ने भी चाहा कि जब वो किसी को खल्क करके दुनिया में भेजे, खासतौर इंसान की अशरफुल मखलूक़ात है, अकल रखता है, तो उसकी रहनुमाई के लिए कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। जैसे रहनुमाई का सिलसिला हमेशा ही जारी रहा, कभी अम्बिया की शक्ल में, कभी किताब अल्लाह की शक्ल में, कभी वली खुदा की शक्ल में। तो सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लीडरशिप में ये होता है कि जो भी इंसान होता है उसको हमेशा रहनुमा की ज़रूरत होती है और वो रहनुमाई के लिए खुदा ने इंतज़ाम किया। इसी तरह आप बेसिकली लाइफ में अपनी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, आपको कोई ना कोई हमेशा इंस्पिरेशन रहा होता है, कोई ना कोई मेंटोर होता है, कोई ना कोई लीडर होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स की शक्ल में हो, चाहे वो आपकी टीचर्स की शक्ल में हो। आप कभी भी किसी को इंस्पिरेशन रखे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कोई ना कोई एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जो आपको आगे लेके जाए या जिससे आप कुछ सीख सकें, कुछ अच्छा सीख सकें। सर जब लीडरशिप की बात हो रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि जॉन सी मैक्सवेल के बारे में बात ना हो। जॉन सी मैक्सवेल एक ऐसा ऑथर है जिसने तकरीबन 50 अबव बुक्स लिखी हैं, जिसमें से 21 उसने लीडरशिप के बारे में लिखी।
लीडरशिप के बारे में उसने बहुत बात की और वो 20 ईयर्स का जब था तब उसने लीडरशिप के बारे में बात करना शुरू की थी और वो काफ़ी लीडर्स से इंस्पायर हुआ था। तो उसने लीडरशिप के बारे में बहुत बात की थी और उसने ये कहा था कि लीडर वो होता है जिसको खुद अपनी राह का मालूम होता है और वो दूसरों को राह दिखाता है और दूसरों के को साथ लेते हुए मंजिल तक चला जाता है। वो अकेले नहीं जाता, यानी उसको मालूम है कि उसे कहाँ जाना है और उसको पता है कि उसे कहाँ जाना है और किस तरह जाना है और सबको साथ लेते हुए अपने मंजिल तक चला जाता है। सही। 7 ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या प्रॉस होते हैं, क्या फायदे होते हैं और क्यों होनी चाहिए या क्या क्वालिटीज एक लीडर में होनी चाहिए। लीडर खुद आप अपनी ज़ात में होते हैं, आप अपनी ज़ात को भी जो है वो लीड कर रहे होते हैं मुस्तकिल। आप अपनी क्या होता है लीडर में, कॉन्फिडेंट होता है, डिसीजन मेकर होता है, वो डिसाइड कर रहा होता है कि उसे क्या करना है। हर कोई यहाँ पे कुछ ऐसे लीडर्स भी होंगे मौजूद जो खुद तो सही रास्ते पर हैं लेकिन वो दूसरों को भी ले आएंगे वहाँ पे। जैसे कि एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल उसमें टीचर्स होते हैं। पॉजिटिव सर आपने अक्सर सुना होगा, अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, अपने टीचर्स से भी सुना होगा कि आप हमेशा अपनी सोहबत का ख्याल रखिए। खुदा ने इंसान के अंदर ये ताकत रखी है कि वो बहुत चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और जल्दी कैच करता है। सही है। अब अगर आप पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे, अगर आप खुद बुरे नहीं हैं और अगर आप बुरे लोगों में उठना बैठना शुरू करेंगे ना, आपको लोग देख के पहचान लेंगे आपकी कंपनी कैसी होगी, अब कैसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं। सर पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इंसान को, बहुत अच्छा सोचे, होपफुल होना चाहिए, होपलेसनेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप नीचे गिर भी रहे ना तो आपको उम्मीद होनी चाहिए कि आप उठ जाएंगे। जॉन सी मैक्सवेल ने एक और बात कही थी, इंसान 2 किस्म के इंसान होते हैं, एक वो होता है जो गिरता है और गिरा ही रह जाता है, उठता नहीं है। एक वो होता है जो गिरता है और बाउंस बैक, वो ऐसे गिरता है और फिर ऐसा उठता है कि दुनिया देखती है कि उसने क्या किया। अप्रोचेबल होता है एक लीडर से बात करते हुए किसी को खौफ नहीं आता। सर बॉस और लीडर में यही फर्क होता है, लीडर आपको हमेशा साथ लेके चलता है, बॉस का खौफ होता है, उनकी झूठी इज्जत भी होती है, सॉरी टू से बट ऐसा होता है। आप किसी ऐसे इंसान की इज्जत से मुंह करेंगे क्योंकि आप उनके पास जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई मकसद है, उससे रिलेटेड आप अस्सलाम वालेकुम ये वो सब करेंगे। लेकिन सर अप्रोचेबल क्या होता है, वो आपसे बात करते हुए खौफ न करें। आप जापान में देखिए, जापान में सबसे ज़्यादा लोगों ने तरक्की इसी बेस पे की कि उनके एम्प्लॉयज़ को बात करने की इजाज़त थी, वो बात कर सकते थे, वो अपने आइडियाज़ दे सकते थे। लीडर की क्वालिटी होती है वो सुनता सबकी है लेकिन चूज वो वाइजली करता है कि उसे करना क्या है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। भाई ब्लेमिंग पर्सनैलिटी नहीं होती लीडर की बिल्कुल भी। अगर उसकी टीम से वो गलती हो गई है ना किसी एक भी पर्सन से, तो वो ये नहीं कहेगा भाई आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आपने किया है, आप ही सबसे बुरे हैं, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं होता। ब्लेमिंग पर्सनैलिटी नहीं होती, उसमें ब्लेमिंग करने का कोई उसका रीज़न नहीं होता, वो सबको साथ लेके चलता है और वो बजाय इसके कि वो किसी को ब्लेम करने में अपना टाइम वेस्ट करे, वो उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है। उसकी टीम का अगर कोई गलती है ना वो उसकी गलती है, वो अपनी गलती समझता है उसको, इसीलिए वो उसके सॉल्यूशन की तरफ जाता है। एडेप्टेबल, हमेशा कुछ नया सीखता है और दूसरों को सिखाता है। बार बार एक ही चीज़ को, मतलब ये बात नहीं है कि वो एक ही चीज़ को बार बार लेके चलता रहे। अगर कोई नई चीज़ आ गई, फॉर एग्जाम्पल आप टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल ले लें, लोग पहले अकाउंटिंग कैसे करते थे रजिस्टर्स पे, लेकिन बदल गए ना। फिर उसके बाद इसी तरह लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जल्दी अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, बहुत जल्दी वो जो अडॉप्ट करता है और दूसरों को भी सिखाता है कि वो क्या करें और किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। डिसीजन मेकर, डिसीजन लेने का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई लीडरशिप की ऐसी क्वालिटी होती है कि वो सबकी सुनेगा। जैसे एक टीचर है ना, वो आपसे राय लेगा, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ पढ़ा रहे होंगे, अगर ये टॉपिक है इस पर कोई बात करना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है, वो सबकी सुनेगा और कोई सही कहेगा तो उसको अप्रिशिएट करेगा, कोई नहीं कहेगा तो उसको डिग्रेड नहीं करेगा, लेकिन उसे समझाएगा, बताएगा कि भाई ये सही है, तो वो उसकी भी रहनुमाई हो जाएगी उसमें, और बाकी जो लोग जवाब नहीं देंगे उनको ही पता चल जाएगा। कॉन्फिडेंट, सर बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें वक्त पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है डिसीजन लेने, क्योंकि जितनी इंसान बातें सुनता है डिसीजन लेना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन जब वो एक दफ़ा डिसीजन ले लेता है ना, बस फिर वो अपने डिसीजन पे ना स्टिक हो जाता है कि बस हम उसको यही करना है, कॉन्फिडेंट होता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है और इस पर ही हम आगे वर्किंग करें। ग्रेट लीडर्स एंड इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज। कायद आज़म किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, आपको पता ही है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। सर कायद आज़म की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिनमें एक है कि वो ऑनेस्ट थे, ट्रुथफुल थे,
उन पे लोग बिलीव करते थे, उन पे ट्रस्ट करते थे, जिसकी वजह से आज जो है वो पाकिस्तान में आप बैठे हुए। सर उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इतना सोचें लोगों के लिए। उनको मुस्लिम कंट्री बनानी थी, उन्होंने अपनी जान लगा दी और लोगों के साथ होते हुए लोगों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लीडर अकेले काम नहीं करता, वो सबको साथ लेके काम करता है। तो उन्होंने साथ लेके एक मुल्क बना दिया जिसमें आज आप तक बैठे हुए। जबकि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद उनकी ज़िंदगी भी इतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी उनकी प्लानिंग ये थी कि भाई मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ जो लोगों को हमेशा फ़ायदा दे। उसकी लीडर की ये क्वालिटी होती है कि सिर्फ उसमें अपनी ज़ात नहीं होती, मैं नहीं होती, मैं से आगे भी बहुत कुछ होता है। वो लोगों के बारे में भी सोचता है, अपने बारे में सोचता है लेकिन लोगों के बारे में नहीं सोचता। नेल्सन मंडेला का एक बहुत बड़ा पॉइंट था, वो ये था कि सर इसमें फॉरगिवनेस बहुत थी। जब 27 साल जेल काटने के बाद ये बाहर निकला और इसका इंटरव्यू लिया गया कि सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप पे जुल्म हुआ, आप पे मतलब आप नाहक इतना जेल में रहे और सब कुछ, तो उसने एक बहुत प्यारी बात कही थी और वो ये कही थी कि मैं पीछे की तरफ नहीं देखना चाहता और मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने उन्हें माफ़ किया। बहुत बड़ी बात है कि जिसने पूरी जवानी अपनी जेल में गुजार दी और उसमें बाहर आने के बाद वो लोगों को माफ़ कर दे। नेल्सन मंडेला की बात थी। जॉन सी मैक्सवेल, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, उसने नेल्सन मंडेला के ऊपर किताब लिखी, लेकिन किस बात पे? उसकी सोच। आप मंडेला की तरह कैसे सोच सकते हैं, सोच का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपकी सोच अच्छी है ना तो ही आप कहीं जा सकते हैं, तो ही आप किसी मकाम पर पहुंचेंगे। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको सोच अच्छी है ना तो आपको कोई ना कोई मोटिव होगा जिसको आपको अचीव करना हो लोगों के साथ मिलकर। नेल्सन मंडेला के आखिरी कुछ जुमले जिनमें बहुत सारे मशहूर जुमले थे, लेकिन एक था कि उन्होंने एक वक्त आया था कि जब उनकी बात हो गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे उन्होंने कहा कि जब हज़रत हुसैन ने अपने किसी हक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अगर आप हक पे हैं ना तो डटे रहें। और वो पॉइंट ऐसा था कि जिसके बाद उन्होंने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नेल्सन मंडेला की जेल में अक्सर लोगों ने विजिट किया, जिसमें एक बराक ओबामा था। उन्होंने जब विजिट किया तो उन्होंने बाहर आके रिमार्क्स लिखे थे कि अगर कोई एक लीडर है ना उसका ज़र्फ हमेशा बुलंद रहेगा। 27 साल जेल गुजारने के बाद भी उनका ज़र्फ नीचे नहीं हुआ। आके बाहर भी ये कह रहे कि मैंने उन्हें माफ़ किया। और आपको पता है कि हमारे पास तो इस्लाम में भाई बेशुमार ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका किरदार ऐसे ही रहा जब भी वो लीडर रहे और आज तक दुनिया उनको मानती है। मदर टेरेसा इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया, एक नन थी। इंस्पिरेशनल इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस वक्त काम किया जब कोई काम करना नहीं चाहता था बच्चों के लिए, तो मदर टेरेसा का ये रोल था। नेक्स्ट इज माओ ज़ेडुंग। चाइना में 90% लोगों का इनका इन्फ्लुएंस लोगों पर आज तक है, और वो इसलिए क्योंकि फेयर थे। कुछ क्वालिटीज़ जो रिसर्च की गई चाइना में, उनमें एक ये था कि भाई वो एक फेयर लीडर था और उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया। लीडर हमेशा फेयर होता है। एनी क्वेरीज? वेरी वेल, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रिदा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की आप बात कर रही हैं। लीडर के अंदर कंपलसरी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो। जब हम एज ए CMS सोचते हैं तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ऑडिट है, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्स, तो बीइंग के ऐसे में जब करवाते हैं CMA तो वो पूरा बिजनेस का लीडर तैयार करते हैं। ठीक है, बात है हुसैनियत की, आला मकाम की, तो वो सेकंड पॉइंट है कि पुरानी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना है। मीन कि अगर कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको किसने किया, क्या किया, उसको ब्लेम करने से बेहतर है कि आगे की स्ट्रेटजी बनाए। और बात की आपने हुसैनियत की, तो अगर ये मैक्सवेल और नेल्सन उनका जिक्र करते हैं तो ये तो नॉन मुस्लिम में बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही फिर ताजदार हुसैन नहीं कहते। ओके, तो सबके लिए है ना, सबके लिए, सबके लिए, वो सबके पूरे इंसानियत के लिए। ताजदार हुसैन ना नबा हाशमी के लिए और ना सैयदा रजा जाफरी के लिए, तमाम लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। It was very good, Rida. Now I would like to call Mr. Adnan Qureshi and his topic is leadership.
के नाम जो दोनों जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम मोहम्मद अदनान कुरैशी, आई एम फ्रॉम ICMA पाकिस्तान, FA सेक्शन B। मेरा आज के दिन का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुझे तकरीबन 50+ लीडर के सामने एक लीडरशिप को डिफाइन करना पड़ रहा है, एक लीडरशिप पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है। आप में से सब के सब यहाँ पर लीडर हैं, हर फील्ड में, हर लिहाज से किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई अपने आप में एक लीडर रखता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि एक्चुअली लीडरशिप होती क्या है। अगर लीडरशिप को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लीडर या लीड मतलब रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, आगे ले जाने वाला, एक अच्छी मंजिल की तरफ या एक अच्छे रास्ते पे लेके जाने वाला। सेकंड वन इज शिप बेसिकली एज अ मशीनरी जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो लीडरशिप का सबसे बड़ा जो अगर इसको कंबाइन करें तो एक चीज़ को उठा के, लीडर वो होता है जो किसी चीज़ को या किसी कौम को या किसी मजमूए को उठा के एक जगह से एक अच्छी जगह पे, एक बुलंदी पे ले जाए, तो वो कहलाता है लीडरशिप। दुनिया में बहुत से लीडर आए, बहुत सी जगहों पे लीडरशिप होती है। एक होते हैं जो लीडर होते हैं सिर्फ अपने ऑफिस में, अपने कंपनीज में, लेकिन इनका रोल सिर्फ एक महदूद होता है एक अपने ऑफिस के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि जो ICMA का लीडर है अपने घर पे भी लीडर हो। वो यहाँ से छुट्टी करके जाता है, वो घर पे जाके उसको बेगम बोलती है चल बर्तन साफ कर, सॉरी कि यहाँ वो बॉस है, यहाँ वो लीडर है, यहाँ उसके मातहत हैं, यहाँ वो हुक्म दे सकता है सर आप काम करें, आपने असाइनमेंट नहीं बनाया आपको निकाल दिया, XYZ कुछ भी है। लेकिन यहाँ से घर पहुँचा, बहुत से लीडर ऐसे हैं, बहुत से ऑफिस में होते हैं, बहुत से स्टाफ होता है बहुत बड़ा, तो सबके साथ ऐसा है। आप में तो बहुत से लीडर होंगे जो घर के लीडर होंगे, कोई बड़ा होगा वो अपने घर का लीडर होगा, कोई भाई है, कोई सिस्टर्स है, वो अपने घर में हुक्म चलाती है, लेकिन यहाँ के वो लीडर नहीं है। लेकिन कुछ लीडर ऐसे थे जिनको दुनिया ने देखा, ज़मीन ने भी देखा, आसमान ने भी देखा, जिनकी बातें आज तक होती हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो लीडर थे। उन्होंने दिखाया था कि लीडरशिप होती क्या है, चलाया किस तरीके से जाता है, आगे किस तरीके से बढ़ा जाता है, इस कौम को या किसी भी चीज़ को या किसी इंसानियत को उठा के रहनुमाई की तरफ या आगे की तरफ किस तरीके से लेके जाता है। व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप वही जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो एक पूरी टीम के बारे में, अपने पूरे एम्प्लॉय, अपने जो उसके साथ होते हैं वो सबके बारे में सोचता है। ऑफिस का बॉस हो गया या कोई भी HR मैनेजर हो गया, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि कोई और एम्प्लॉय उठ के मेरी सीट पे आ जाए। वो कभी ये बात नहीं करेगा कि यार मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, आप अपने अंदर ये स्किल डेवलप करो तो आप इधर आ जाओगे, मैं घर जाके बैठ जाऊँगा। लेकिन जो लीडर होता है वो सोचता है कि हाँ आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने नहीं रहना, तो मेरे बाद कोई और बंदा आएगा, यहाँ पर कोई और ये आके मेरी सीट संभालेगा, ये कौम को या इस नेशन को आगे की तरफ लेके जाएगा। अगर हम बात करें उसकी पर्सनैलिटी की, इफेक्ट की, तो लीडरशिप एक बहुत बड़ा मजमूआ होता है कि उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं लीडर के अंदर कि उसकी रहनुमाई करे, वो उसके अंदर बर्दाश्त होती है, उसके अंदर मैं नहीं होती, उसके अंदर अना नहीं होती, उसके अंदर माफ़ी, सबसे बड़ी बात अना और माफ़ी, ये जिसके अंदर आ गया वो बहुत बड़ा लीडर है। तो चाहे कुछ ना करे लेकिन उसके किरदार से और उसके अमाल से ये सब चीज़ें वाज़िह नज़र आती हैं जो लोगों पर अफेक्ट करती हैं। बहुत से लीडर होते हैं, बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं, बगैर उनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन उनके अंदर आना नहीं होती। लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करते, उसकी अच्छाई करते हैं कि यार ये देखो कितना अच्छा बंदा है, इसके अंदर आना नहीं है, इसके अंदर ईगो नहीं है, इसके अंदर हेल्प है, ये लोगों की हेल्प करता है बगैर किसी मतलब के। अच्छा, लीडरशिप के स्टाइल और उसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स और कुछ टाइप होते हैं जिसको मैं बहुत कम वक्त में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आता है ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। हाँ जी, वही कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है हर हाल में, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपकी क्लास हो, ये मेरा हुक्म है, ये कहलाती है ऑथोरिटेरियन। चाहे अदनान कुरैशी की PPT तैयार हो या नहीं हो, लेकिन आपने आके यहाँ पर परफॉर्म करना है। दिस इज कॉल्ड ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। जो मैं कहूँगा वो मेरा हुक्म है, जो मैंने कह दिया वो हुक्म है, जो हमने बना दिया वो कानून है। सेकंड वन इज डेमोक्रेटिक। अच्छा, इसकी जो ऑथोरिटेरियन लीडरशिप है इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपके घर से देता हूँ
घर से मिसाल ये कि जब बच्चा छोटा होता है उसको स्कूल भेजते हैं 5, 6, 7 या जो भी है, उसको होमवर्क मिलता है, मम्मा या पापा मैं नहीं कर रहा, मैं ट्यूशन नहीं जा रहा। नहीं, आपने जाना है। क्यों? उनके लीडर है, उनको पता है नहीं जाएगा तो आगे जाके वीक होगा। आपने जाना है, आपने करना है, ये उनका हुक्म होता है कि आपने मानना है हर हाल में। सेकंड वन इज डेमोक्रेटिक। इसमें ये होता है कि आपस में मिलजुल के काम होता है, थोड़ी आपने मेरी मानी, थोड़ी मैंने आपने मानी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दोस्त यार होगा। यह एक अच्छा माशरा हम उसको ले लेते हैं। इसको भी अगर हम स्कूल की उसमें घर की मिसाल में ले लें तो बच्चा जो हो गया, जो 11, 12 या इंटर या मास्टर लेवल में चला गया, घर वाले बोलते हैं आज नहीं जाना, चलो कोई बात नहीं। क्यों? मैच्योर हो गया है, उसके अंदर समझदारी आ गई है, अकलमंदी है उसके अंदर, वो अपने फैसले तकरीबन 50% खुद ले सकता है। तो ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप में दोनों मिल बांट के चलता है। थर्ड वन इज लव। आपकी मर्जी जो करें, मेरी मर्जी जो करें, लेकिन राइट हो। एक टॉपिक है, आपने इस पे काम करना है, आप अपने तरीके से करें, मैं अपने तरीके से करता हूँ। इसकी मिसाल भी घर से ले लेते हैं। बच्चा हो गया बड़ा, सर आपकी एज पे पहुँच गया है, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। घर वाले आपको टोकेंगे अगर आप गलत डिसीजन लेंगे, लेकिन सही लेंगे आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आगे चलते हैं। मोस्ट फेमस लीडर। अब इस पर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा मैं, और शायद थोड़ा सा टाइम भी लग जाए। तो सबसे पहले तो इस सरजमीन ने, इस ज़मीन ने और इस आसमान ने बहुत से लीडर देखे हैं, जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, जिसका नाम इस दुनिया बनने से पहले भी था और रहती दुनिया की आखिर तक जाएगा। वो है हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा रहनुमा थे जिन्होंने कभी कोई गलत या कोई ऐसी बात नहीं की, और जिसका नाम रहती दुनिया तक रहेगा। उसके बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके से, उनकी लीडरशिप के हवाले से, कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी। जितनी भी क्वालिटीज़ हैं अगर उसको उठा के उस एक मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर डाल दें तो क्वालिटीज़ कम पड़ जाएगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया वो कभी कम नहीं होगा। एक वाक्य बताता हूँ उनका। वही बात हो, एक जाबर नाम, ठीक है। आपने सेकंड वन जो बात की है खालिद बिन वलीद और प्रॉफिट, तो बेटा प्रॉफिट जो है ना वो हम जैसे मतलब नहीं है, वो बहुत स्पेशल मतलब है और उनकी तरबियत डायरेक्ट अल्लाह ताला करते हैं, वो गलतियाँ नहीं करते। एक्चुअली बात तरबियत या उनकी प्रॉफिट की वो चीज़ है, लेकिन उनके अंदर क्या क्वालिटी थी, क्या उनके अंदर माइंडसेट था, क्या उनके अंदर कितनी बर्दाश्त थी। बहुत से लोगों ने पत्थर भी मारे उन पर, लेकिन क्या बोला, साहबा ने बोला कि बदुआ करो इनके लिए। उन्होंने क्या कहा, मैं माफ़ करता हूँ। क्यों? बर्दाश्त थी, अदम था, मैं नहीं थी। और मैं का लफ्ज़ जहाँ में होता है तो समझ लो वो छुरी के नीचे आता है। जहाँ मैं आ गई वो छुरी के नीचे आएगा। बकरी सबसे ज़्यादा मैं करती है, छुरी के नीचे आ जाती है। और टॉलरेशन पावर तो कुरान का हुक्म है ना, सबका हुक्म है, सबको करना चाहिए। लेकिन हम तारीफ के लिए तो हम खुद काबिल नहीं कि हम सब मज़े में बैठे हैं, नहीं, उनकी तो तारीफ के लिए समंदर भी कम पड़ जाए। लेकिन नॉर्मल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रॉफिट जो होती है वो स्पेशल कैरेक्टर है, उनसे कभी गुनाह नहीं होते। उसके अलावा बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिनको दुनिया ने देखा है। नेल्सन मंडेला का जिना था, वो जिना नहीं जो आपकी जेब में है, वो कायदे आज़म है। उनको तारीफ के मोहताज हैं। अगर आप कहीं जाओ तो बोलना पड़ता है कायदे आज़म है, कायदे आज़म की सिफारिश पे हैं। लेकिन जिना साहब उन्होंने दिखाया है कि होता क्या है, किस तरीके से। उनका एक वाक्य मैं आपको बताऊँगा, टाइम नहीं है, अगर 2 मिनट दे तो टाइम बर्दाश्त एंड में आ जाए, ठीक है। और चलो गुड लक, क्लैप कीजिए। It was a very good presentation you designed overall, and it was well versed and a good material. But you have to work on the slides. देखिए यहाँ पे लेसेस फेयर लीडरशिप, अभी मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। आप तो एक मतलब कुछ डिफाइन कर रहे हैं, तो पीछे मतलब किसी को अगर आपकी बात समझ नहीं आई तो वो पीछे से पढ़ के वो देख के पढ़ सकता है कि इसमें लिखा क्या है। तो वो थोड़ा सा आप उस पर मटीरियल पे थोड़ा सा काम कीजिए। इट वाज गुड, टॉपिक्स आपका अच्छा था और जो सब टॉपिक्स थे इसके मतलब कंटेंट था जो इसका वो बहुत अच्छा था। लेकिन आप इस स्लाइड्स पे थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। और सेकंड आपकी मतलब ड्रेसिंग पे, मतलब आपकी ड्रेसिंग फॉर्मल होनी चाहिए। अगर ठीक है आप पैंट शर्ट नहीं पहनते, आप कोट या वेस्ट कोट या शूज़ आप पहन लीजिए उस पर, और अपनी पॉकेट्स को हल्का कर लीजिए ताकि लगे कि प्रोफेशनल आपकी एक प्रेजेंटेशन चल रही है। मतलब इशूज़ होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, जैसे वो पैंट शर्ट्स नहीं पहन सकते। तो एक हमारे पास एक और ट्रैक भी है जो मतलब उसके सब ट्रैक में आता है
शलवार कमीज में थे, लेकिन कोट या वेस्ट कोट एक फॉर्मल तरीके से जो चल रहा होता है, एक ब्यूरोक्रेटिक तरीका जिसको हम- सर मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देना चाहूँगा। जी, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी स्लाइड की बात का कि कल तक तो मेरी प्रेजेंटेशन तैयार थी नहीं, मैंने आपको वही कहा तो तेरे में कि अदनान आपने प्रेजेंटेशन देनी है चाहे आपकी पीपीटी तैयार हो या नहीं हो। तो मेरे यहाँ बहुत से मेरे क्लास फेलो ने हेल्प की है मेरी इस बारे में। बाय द वे लास्ट में जब मैं ये बना रहा था तकरीबन 1 बज गया था, लास्ट जब इसको एंड कर रहा था, मैं इसको सेटअप कर रहा था, मेरे पास कॉल आई कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, आप वापस ही आ जाएँ। तो तकरीबन 3-4 बजे तक मैं मारा, मैंने इसको दोबारा खोल के नहीं देखा। तो ये एक तो मसला ये है। कल की बात करें ना, मैं उससे ये अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी कि आपकी प्रेजेंटेशन है, तो आप तभी से थोड़ा थोड़ा। Okay, now I would like to call Miss Alisha and her topic is leadership. Assalamu alaikum, respected sir and madam. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am very glad to be here with you today. I would like to quickly introduce myself. I am Alisha Rashid from Section B Financial Accounting. Now let's get started. Today my topic is leadership. Before we discuss about leadership, we should know who is a leader. A leader is someone who can see how things can be improved. लीडर एक ऐसा बंदा होता है जिसके अंदर क्वालिटीज होती हैं, एबिलिटीज होती हैं कि अपनी बात मनवाने की, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को मोटिवेट करने की और लोगों को बेटर विजन की तरफ लेके जाने की। तो दैट इज अ लीडर। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मतलब कि एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को गाइड और लीड प्रोवाइड करते हैं। लीडरशिप हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी हो सकता है, हमारे स्कूल का लीडर हो सकता है, हमारी फैमिली का लीडर हो सकता है और मतलब हमारे हर जगह लीडर्स मौजूद होते हैं। तब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की अगर बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जो है अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है लीड कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, परसुएट कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है और वो चेक कर रहा होता है कि वो एम्प्लॉयज अपने काम ठीक कर रहे हैं या नहीं। अगर वो काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहे तो वो जो है उनको गाइड प्रोवाइड करेगा कि काम को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए। सो दैट इज द लीडरशिप। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट पॉइंट इज इसमें कम्युनिकेशन। लीडरशिप स्टार्ट्स विद कम्युनिकेशन। लीडरशिप जो है स्टार्ट ही कम्युनिकेशन से होती है। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और कस्टमाइज्ड टू द रेसिपिएंट होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर जानता है कि कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल या कौन सा कम्युनिकेशन मेथड जो है उसकी टीम के लिए बेस्ट रहेगा। अब वो फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करे, वो उसके लीडर के ऊपर है कि उससे कौन सा यूज करेगा तो उससे उसकी टीम जो है सही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नोइंग योर पीपल। जरूरी है कि जो है लीडर जो है अपनी टीम को जाने। इट इज इम्पॉर्टेंट नोइंग योर टीम। एक अच्छा लीडर जो है अपनी स्ट्रेंथ को भी जानता है और अपनी वीकनेसेस को भी जानता है और ये भी जानता है कि वो कौन सी बातें करेगा जिनसे उनकी टीम जो है मोटिवेट होगी और जिनसे उनकी टीम मोटिवेट होगी और कौन सी ऐसी बातें जिनसे उसकी टीम जो है मोटिवेट नहीं होगी। ये इसी तरीके से हो सकता है कि लीडर जो है अपनी टीम के साथ वक्त गुजारे, उनको पता चले कि वो कौन सी बातें करते हैं और किस तरीके से उनकी टीम जो है मोटिवेट होगी। थर्ड पॉइंट है इसमें नोइंग योरसेल्फ। जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ जो है लीडर को अपनी टीम के बारे में पता चले, बल्कि जरूरी ये भी है, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो योरसेल्फ। जरूरी ये भी है कि उसको पता हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। It's just a job or you want to be a leader। अगर ये आप सिर्फ जो है अपनी जॉब और प्रेस्टीज के लिए, मनी कमाने के लिए लीडरशिप कर रहे हो तो यू आर नॉट अ ट्रू लीडर। आपको जो है ना ही आपसे जो है इससे टीम खुश होगी और ना ही आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। लास्ट थर्ड पॉइंट है इसमें डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि अपनी अपनी मर्जी से काम करना।
डेमोक्रेसी में जो है एक अच्छा लीडर जानता है डेमोक्रेसी के एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए वो बोलता है कि ठीक है आप जो है अपने अपने सजेशन रखो, फिर वो उसको जो सजेशन उस एम्प्लॉइज का अपनी टीम का समझ में आता है, वो उस पर अमल करता है या तो फिर वो अपने फैसले खुद लेता है। वो सबकी राय लेकर जो है काम करता है। डेमोक्रेसी में ये होता है। सीकिंग आउट फीडबैक्स ये होता है कि सीकिंग आउट फीडबैक्स में एक अच्छा लीडर अपने एम्प्लॉइज से टीम से जो है फीडबैक्स लेता है और ये जानता है कि उसकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ताकि उसको हम जो है इस्तेमाल कर सके एडवांटेज के तौर पर कि हम कौन से एरियाज पर हमें काम करना है। नेक्स्ट है उसमें लीडरशिप स्टाइल्स कि एक लीडर के काम करने का तरीका कौन सा होता है, कैसा होता है एक लीडर के काम करने का तरीका। लीडरशिप के 4 स्टाइल्स होते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में डेमोक्रेसी जैसे ही होता है, ये डेमोक्रेसी से ही निकला हुआ है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में लीडर्स जो है अपने एम्प्लॉयज से, अपनी टीम से सजेशन लेते हैं और उनके बेस पर, उनके बिहाफ पर वो डिसीजन लेते हैं और जो है यही करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है बिल्कुल इनवर्स होती है, अपोजिट होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप के। इसमें जो है लीडर अपने एम्प्लॉयज से, अपनी टीम से जो है कोई सजेशन नहीं लेता, कोई राय नहीं लेता, वो अपने ऑर्डर्स देता है, बस तुमने यही करना है, वो बस हुक्म देता है डायरेक्ट। थर्ड स्टाइल है उसमें हमारा लेजी फेयर लीडरशिप। लेजी फेयर लीडरशिप जो है, लेजी फेयर इसमें फ्रेंच की टर्म है जिसका मतलब है लेट देम डू, मतलब काम मतलब खुद से करने दो। लेजी फेयर लीडरशिप में लीडर जो है गोल असाइन कर देता है, लीडर जो है गोल नहीं असाइन करता, लीडरशिप जो है बोलता है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्री हैंड से काम करो, डू योर वर्क एट योर विल। वो जो है आपको बिल्कुल फ्री हैंड दे देता है कि आप अपनी मर्जी से फैसले करो और आप अपनी मर्जी से काम करो, लेकिन बस वो मॉनिटर करता रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। फोर्थ हमारी लीडरशिप है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में लीडर गोल असाइन कर देता है, टास्क असाइन कर देता है वीकली और मंथली बेसिस पर। ये जो है आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है और फिर जो है वो गोल को देखता है कि गोल सही आप कर रहे हो नहीं, और उसके ऊपर से आपको गाइड करता है। हाउ टू बी एन इफेक्टिव लीडर, हम एक अच्छे लीडर किस तरह से बन सकते हैं। फाइंड योर पैशन। पैशन कहते हैं जुनून को, तो हमें ना लीडर बनने का पैशन होना चाहिए। अगर जब तक हमारे अंदर लीडर बनने का पैशन नहीं होगा, हमारे अंदर लीडर बनने का जुनून नहीं होगा, तो हम जो है अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। जुनून तो किसी भी चीज़ में हो तो वही सही रहता है, वरना जो है हम जो है सिर्फ एक जॉब के लिए काम कर रहे होते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं काम कर रहे होते। तो जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसको जुनून था कि वो लोगों को जो है इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट करके देगा, तो वो 9999 मरतबा फेल हुआ, लेकिन उसकी एनर्जी लेवल कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई और उसने 10,000 मरतबा जो है किया अपना एक्सपेरिमेंट और लोगों को इलेक्ट्रिक बल्ब से इन्वेंट करके दिया। तो ये उसका जुनून था। तो अगर आपके अंदर लीडर बनने का जुनून है, पैशन है, तभी आप लीडर बने, बल्कि उसके अलावा आप लीडर ना बने, क्योंकि आप सिर्फ उस पर अपनी उस पर सोच रहे होंगे, आप लोग जो है लोगों की हिदायत नहीं कर पाएंगे। डू यू हैव अ डिजायर टू लीड? अगर आपके अंदर डिजायर है, ख्वाहिश है कि मैं लोगों को लीड करूं, लोगों को बताओ, लोग मुझसे इंस्पायर हो, लोग मुझसे मोटिवेट हो, तो फिर जो है आप एक लीडर बनो। आप एक अच्छे लीडर तभी बन सकते हो जब आपके अंदर चाहत हो कि लोग मुझसे मोटिवेट हो, लोग मुझे फॉलो करें, लोग मुझे मोटिवेट करें। थर्ड पॉइंट है इसमें इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में 3 चीज़ आती हैं कि एक अच्छे लीडर को जो है ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और रोल मॉडल होना चाहिए लीडर का। लीडर पे भरोसा किया जा सकता है कि
लीडर हमें बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो है रोल मॉडल उसका होना चाहिए कि वो जो काम करे उसकी एग्जाम्पल दें, दूसरे लोग उसकी मिसाल दें। एक मिसाल बनने वाला लीडर हमें बनना चाहिए। तो अगर आप एक लीडर के अंदर इंटीग्रिटी नहीं होगी तो आप जो है एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अलिशा आपने बात की पैशन की और वो इसको मुझे आप कैसे करिए लीडरशिप से। सीएमए वाला चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप लोग पर्सनल मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। चार्टर्ड मैनेजमेंट आप लोग समय को कहते हैं, वो बिजनेस लीडर बन जाता है एफसी में सर, बिजनेस लीडर के लिए एफसी में, यानी ऐसा हमारा फैलो मेंबर, ठीक है। तो वो पैशन होता है उसके अंदर या दूसरी भी कोई चीज़ होती है। हमारे साथ ऐसे में कितने लोग एडमिशन लेते हैं तो सारे लोग लीडर बन जाते हैं, पैशन तो सभी का होता है ना। या वो लोग जो एक्स्ट्रा भी कोई चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, क्या ऐसा रीज़न है कि पैशन दिखाई गया काम करना है, लीडर बनना है, किसी कंपनी का सीएफओ बनना है, लाइक स्टॉक एक्सचेंज का एफबीआई में किसी का कमिश्नर बनना है, लेकिन पैशन के साथ ऐसी क्या चीज़ होती है, क्या वो रीजन पॉइंट होंगे? पहले तो लीडर बनने के लिए आपको आपके अंदर जो है जॉब रिलेवेंट नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई हम जिस चीज़ का लीडर बन रहे हैं उस जॉब की हमें नॉलेज है, उस शोबे की हमें नॉलेज है, ताकि हम लोगों को जो है लीड प्रोवाइड कर रहे हैं। और हर किसी का ये बोलना है कि मैं लीडर बनूंगा, तो जिसके अंदर क्वालिटी होती है ना वो लीडर खुद ही बन जाता है। तो जॉब डिफरेंट होता है, वो खुद ही बन जाता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ वो मेहनत बताएं, वो पॉइंट्स पता कर जाए ताकि आपका भी माइंड क्लियर हो, तमाम लोगों को हो सके। मिस मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा। मेरा कहने का मकसद है, आपने कहा कि लीडर बनने के लिए पैशन होना जरूरी है, जुनून, जज्बा। पैशन तो एक सिंगर के अंदर भी है कि वो सोचता है कि मैं बचपन से सिंगर बनूं और बन गया, लाइक आजम अजहर बन गया 22 एज में सिंगर बन गया, ठीक है। पेशेंस तो है, एक चीज है, वो आर्ट जैसी चीजों पर तो चल जाती है कि फन है, लाइक वसम मदामी बोलने का फन है, ठीक है, बन गया चलो। लेकिन यहाँ बात की आपने लीडरशिप की, तो लीडरशिप तो सब चीजों में काउंट हो रही है। बिजनेस लीडर उसे कहते हैं जो सीएमए क्वालिफाइड हो, प्लस उसके अंदर एक्सपीरियंस हो, डिपार्टमेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट, कॉर्पोरेट लॉ, हर चीज को लीड वो कर सके। पेशेंस है, आपने सही बात की, जज्बा है, जज्बे के साथ दूसरी चीज क्या ऐसी होगी कि जो आपने का नॉलेज फुल होना चाहिए, शोबे के साथ नॉलेज है, सही है, दो चीजें और होंगी, वो आप माइंड को घुमाएं और मुझे रिप्लाई देते चलो। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी बारी और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए लोगों को गाइड करने की, और इंटेलिजेंट होना चाहिए और इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, आइडियाज क्रिएटर और सेल्फ रिसर्चर, मैं के खुद में रिसर्च करूँ, ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक। जैसे मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल के साथ साथ उस लीडर को जो है ना विजनरी होना चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल उसका एक टारगेट होता है बचपन से ही कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर, उसका एक विजन है। अगर वो उसके हिसाब से अपनी मेहनत करता है तो वो डॉक्टर बन ही जाता है, ठीक है। आपका जैसे मैडम ने कहा कि एडमिशन लेते हैं तो सारे लीडर हो गए, नहीं हो गए ना, लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं, आपने कहा नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज आपको पहले नहीं होती, एडमिशन से पहले आपको कुछ पता नहीं था अकाउंट्स के अंदर क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती थी। लेकिन जब आप आते हैं, आपका एक विजन है कि आफ्टर क्लियरिंग माई सीए में मुझे यहाँ पे होना चाहिए, तो आप उस हिसाब से मेहनत करते हैं। आपका जो गोल है ना वो टास्क ओरिएंटेड बन जाते हैं। प्राइमरी टारगेट ये है, इस मॉड्यूल में मुझे इतने मार्क्स चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट इजीली कवर अप कर सकूँ, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट को क्लियर कर सकूँ। आपका एक विजन बना हुआ है, एक इंटेलेक्चुअल तो है आपके पास, लेकिन आपकी विजनरी जो आपका जैसे कहते हैं ना दूर की नज़र, आपकी वो क्लियर होनी चाहिए, आपका फोकस उसी टारगेट पे होना चाहिए जहाँ पे आपको जाना है। तो उस हिसाब से आपको नॉलेज वो खुद ब खुद आती जाएगी, फिर जैसे ही आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें, जैसे आपको टास्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटीज़ होती है, जिस तरह से वो काम कर रहे होते हैं। इसके लिए मतलब एक बुक मैंने रिकमेंड की थी स्टूडेंट्स को, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लें जो लीडरशिप के ऊपर काम करें या एंटरप्रेन्योरशिप में, उसमें ये बुक का राइटर है स्टीफन कवी।
इसमें ईच एंड एवरीथिंग लोकल, इंटरनेशनल और जितने भी मल्टीनेशनल एजेंसीज के हमारे जो बॉसेज और लीडर्स हैं उन सब में इसकी एग्जाम्पलीफाइड गिवन है कि आप किस तरह से लीडर बन सकते हो, उनकी इफेक्टिव हैबिट्स कौन कौन सी है। थोड़ा सा आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका और भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसमें। ओवरऑल इट वाज अ गुड एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे आप काम कीजिए। आपकी प्रेजेंटेशन मतलब अच्छी बनी हुई थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका शो हो रहा था। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। I would like to call Mr. Sayyid Raza Abidi. His topic is leadership. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. First of all, I would like to introduce myself. My name is Syed Raza Haider Abdi and I am a student of Financial Accounting Section B in the Prime Research Scheme, the National Youth Development Program. So today's my presentation topic name is leadership. So let's talk about what is leadership. लीडरशिप जो है बेसिकली मैनेजमेंट के अंदर आती है और मैनेजमेंट उसे कहते हैं जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से या फिर सही तरीके से चलाए उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। और बेसिकली मैनेजमेंट के 5 पोल्स होते हैं जो कि PODSC के नाम से है। जो पहले है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और जो भी शख्स इन 5 टूल्स को और अपनी सलाहियतों से अपने फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इनको यूज़ करता है उसको हम लीडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं हेनरी फोर्ड जो कि मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसने एज अ एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन किया था और 14 से 15 साल में वो उस कंपनी का CEO बन गया था। तो उसने जो है उस 14 से 15 सालों में उस कंपनी में अपने आइडियाज से, अपने इनोवेशन से उस कंपनी को अच्छी पोजीशन ला के खड़ा किया था। और जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि डेफिसिट्स में जा रही हो या नुकसान में जा रही हो उसको अपने आइडियाज से एक अच्छी पोजीशन पे ला के खड़ा करता है, वो लीडर कहलाता है। नेक्स्ट, 4 essential leadership skills। फर्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो ज़रूरी होती है स्किल्स वो होती है स्पीकिंग पावर और लिसनिंग पावर। तो स्पीकिंग पावर से लीडर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है और अपने कम्युनिकेशन स्टाइल से उनको अपने गोल्स की तरफ मोटिवेट करता है ताकि वो आगे काम करें। और लिसनिंग पावर इसलिए ज़रूरी होती है ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रॉब्लम्स को समझ सके और आगे चलकर उनको सॉल्व कर सके। सेकंड वन है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में जो है फर्स्ट जो है एक लीडर जो है अपनी आइडियाज से, अपने इनोवेशन से ऑर्गेनाइजेशन को दूसरों से मुख्तलिफ करता है और अपने जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी सोच को समझता है कि उनको किस तरह से उनके कैलिबर को हाई करना है, उनकी सोच को। तो ये क्रिएटिविटी कहलाती है। मोटिवेशन में वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है कि किस तरह से उनको गोल्स अचीव करने और कंपनी में काम करना है। पॉजिटिविटी में ये तीनों चीज़ आ जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में वो अपने नेचर पॉजिटिव रखता है, अपना क्रिएटिविटी में अपने नेचर को पॉजिटिव रखता है और मोटिवेशन में भी अपने आप को पॉजिटिव रखता है ताकि सब उसको पॉजिटिव वे मिले। अब हम बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। फर्स्ट है विजनरी लीडरशिप। विजनरी लीडरशिप में जो है वो एक डायरेक्शन लेता है और अपनी प्लानिंग आगे के लिए करता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स होती है जो कि अपने आप को तैयार करता है कि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम होगी वो उसको फेस करेगा और अपने गोल को अचीव करेगा।
और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ये होता है कि वो इंडिविजुअल कोई डिसीजन नहीं लेता, वो अपने सबऑर्डिनेट से सजेशन लेता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसको अपनी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो उसके लिए वर्किंग आवर्स को बढ़ाना है, तो वो सबसे पहले अपने सबऑर्डिनेट से डिसीजन लेगा कि ये करना है या नहीं करना। तो इसको हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ले लेते हैं। थर्ड वन है ट्रांजैक्शन लीडरशिप में ये स्ट्रिक्ट स्टाइल होता है लीडरशिप का। तो इसमें लीडर जो है अपने सबऑर्डिनेट से ना उनको मोटिवेट नहीं करता उनको, और वही उनको अप्रिशिएट करता है, और ऑर्गेनाइजेशन में वो जो है डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है। फोर्थ वन है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, उनको अप्रिशिएट करता है, और अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखता है उनके सामने कि वो उससे इंस्पायर होकर, उससे मोटिवेट होकर अपने गोल को अचीव कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकें। थैंक यू सो मच। रजा, आपने बात की क्रिएटिविटी, जी, तो क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर? आइडियाज होने चाहिए, उसके पास इनोवेशन होने चाहिए। अच्छा, ये आइडियाज होने चाहिए, हाँ, न्यू आइडियाज होने चाहिए स्ट्रेटेजिक लेवल के, ठीक है, न्यू आइडियाज होने चाहिए। और ताकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ दिखे उसके ऑर्गेनाइजेशन। मुख्तलिफ तो देखे, एक और चीज़ होनी चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। मेन ये स्ट्रेटेजिक ओवरकम होता है, कुछ चीज़ें होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को आपकी रोक रही होती, ठीक है, तो उस पर भी लीडरशिप वर्क करता है। तो उसे उर्दू में कहते हैं प्रतीक। क्या कहोगे उस इंग्लिश में? सेल्फ रिसर्चर होना चाहिए, मीन स्ट्रेटेजी कर रहा है, आइडियाज क्रिएट कर रहा है, तो उस पर रिसर्च बेस्ड होना चाहिए कि वो कहाँ अप्लाई हुए हैं, कहाँ इम्प्लीमेंट हुए। उसका कोई नेगेटिव कंपेंट तो नहीं है, हर चीज़ का नेगेटिव भी डिसएडवांटेजेस भी आ जाता है। ओवरकम जो होता है, जो आपकी जो कि एक कॉन्स्टेंट कहते हैं, रुकावट कहते हैं अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को, तो उसको ओवरकम करने के लिए रिसर्च होना चाहिए, इतना एबल होना चाहिए आपका लीडर। ओके, गुड लक। Okay, now I would like to call Miss Ghashia. Her topic is social media. Assalamualaikum everyone. My name is Ghashia and I am a student of FA Section B. So today my topic is social media. What is social media actually? Social media is a term for social media is a collective term for websites and applications where we can communicate, share content and different types of media. ठीक है? So what are the types of social media? There are some common types of social media in which Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, which we use daily basis. अब अगर हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया के डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, आप और मैं इससे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। सो फर्स्ट वन इज न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया हमें जो एडवांटेज देता है, जो उसका बेसिक एडवांटेज है, वो है न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के हवाले से। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो आपके इंटरटेनमेंट के लिहाज से भी आती हैं, आपके हॉट टॉपिक्स, व्हाट आर द मोस्ट रीसेंट, व्हाट आर द मोस्ट करंट टॉपिक ऑफ द सोसाइटी। एज यू कैन सी, यहाँ पे फ्रांस का लोगो है उसके फ्लैग का, तो ये आपकी न्यूज़ भी है, ठीक है, और आप अगर इसको देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन भी है। लोगों को आजकल जो मोस्ट रिसेंट एक इशू क्रिएट हुआ था फ्रांस को लेकर एक इशू क्रिएट हुआ था, उसके बाद दूसरा जो था लेबनान एक्सप्लोजन था, कोरोना वायरस, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया ने जितने बेहतर तरीके से कवर की हैं, तो
किसी और मीडिया ने इस पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया। रीज़न क्या है कि वर्ल्ड वाइड जो आपको सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट लेवल पे भी काम करती हैं। ऐसे लोग जो घरों में होते हैं उन तक भी वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है। तो नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए भी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, ये है फेसबुक है। फेसबुक को भी आप सारे जानते होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेसबुक के थ्रू काफ़ी कंटेंट शेयर करते हैं। तो सोशल मीडिया का दूसरा एडवांटेज है कि ये कम्युनिकेशन के हवाले से हमारी काफ़ी सारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है जितनी ज़्यादा, आप देख सकते हैं अमेजोन है, अलीबाबा एक्सप्रेस है, दराज की अब 11/11 के नाम उससे सेल चल रही है। तो ये सारी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं जिनके थ्रू एडवर्टीजमेंट होती है। और एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स चीज़ें और प्रोडक्ट खरीदते और बेचते हैं। नेक्स्ट वन इज अवेयरनेस। एज यू कैन सी कोविड-19 अवेयरनेस प्रोग्राम और कैंपेन जो चली थी सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चला था। अब कोविड-19 तो आ गया, अब ये खत्म होगा नहीं होगा, इसकी प्रिकॉशंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें किस तरह पता चली? सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलेंगी कि कोविड-19 खत्म नहीं हो सकता मगर इससे प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वो एक बड़ा फेमस ऐड चला था, बशरुल्लाह 6 फुट का फासला। तो ये सोशल मीडिया ही है जो आपको अवेयर भी कर रहा है, इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, एंटरटेनमेंट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो एजुकेट कैसे करता है सोशल मीडिया। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी डेली बेसिस जॉब की वजह से यूनिवर्सिटी वगैरह और ऐसे कोर्सेज नहीं कर पा रहे होते। डीजी स्किल, ये प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये सारी चीज़ें हमें किस तरह से पता चली? सोशल मीडिया के थ्रू पता चली। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कोविड-19 से हुआ क्या कि बिजनेस सारा खत्म हो गया, लोग घरों में मैसूर होके बैठ गए। अब आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने जो लोग जिनसे आप मिल नहीं सकते उनसे आप बात कर रहे हैं, अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। ये सारे भी एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया ही कवर करता है। एक्टिविज्म। कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट होता है तो सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ कैंपेन चलती है, ठीक है। आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसने अफ्रीकन्स को प्रमोट किया कि ब्लैक लाइव्स मैटर, कोई भी उठकर इस तरह से उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकता। तो आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं सोशल मीडिया पे, जो एक मेन फोरम पे जाके काउंट होता है। ई कॉमर्स। सोशल मीडिया ई कॉमर्स को कैसे फायदा पहुंचाता है? आजकल रूटीन सबकी बिजी है, जो वर्किंग वुमेन है या जो मैन है, वर्किंग मैन है, क्या करते हैं कि ई कॉमर्स के जरिए टाइम नहीं है आपके पास, कहीं आपने ट्रैवल करना है, आपने टिकट्स बुक करानी है, ऑनलाइन टिकटिंग होती है, ऑनलाइन बैंकिंग है, शॉपिंग लोग ऑनलाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स में काउंट होती है। जो हमारे ऐसे यूथ है जो ग्रेजुएट्स हैं जिनको जॉब के मौके नहीं मिलते, ठीक है, अगर अपने कंट्री में नहीं मिलते और कहीं बाहर है, फॉरेन में अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो इजीली सोशल मीडिया को यूज करके अपनी ऑनलाइन सीवी सबमिट कराते हैं। इससे क्या होता है कि कंपनीज को भी रिक्रूट करने में ज़्यादा इजी होता है कि कौन सा स्टूडेंट या कौन सा ग्रेजुएट ज़्यादा एलिजिबल है जॉब के लिए। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट लेवल पे सोशल मीडिया कैसे इफेक्टिव है। पहले तो गवर्नमेंट लेवल पे इतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट लेवल पे सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऐसी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिससे लोगों के नंबर ट्रैक हो सकते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिससे लोग कार्स यूज़ करें, कार के नंबर ट्रैक हो रहे हैं। तो ये सारे भी सोशल मीडिया गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी एजेंसीज सारा सिस्टम संभालती हैं कि सोशल मीडिया गवर्नमेंट लेवल पे भी अब यूज़ होता है। इसके बाद बात करते हैं व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। जिस चीज़ के फायदे होते हैं उसके नुकसान जरूर होते हैं। तो साइबर बुलिंग एक ऐसा डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया के थ्रू कि जिसके साइबर बुलिंग में आपका मसला क्या होता है कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है ना तो आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसके साथ फेस टू फेस है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, लोग कमेंट करते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि आप उसको फेस करें।
पॉजिटिव कमेंट को तो आप बहुत आसानी से अप्रिशिएट करते हैं, चलो ठीक है हो गया, लेकिन नेगेटिव कमेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसी यूथ होती है जो नेगेटिव कमेंट्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम छोटी हो, तुम काली हो, तुम मोटी हो, इस तरह के कमेंट जो साइबर बुलिंग में आप उन लोगों को डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज एडिक्शन एंड मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस सोशल मीडिया किस तरह से, जो बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनका IQ लेवल कम हो जाता है, ये रिसर्च है। उसके अलावा एडिक्शन, जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना टाइम यूज़ करते हैं, या जो ऐसी यूथ है वो क्या करती है, अल्टीमेटली एक स्टेज पे आके कंपेयर करना शुरू करती है। उसके पास ऐसे कपड़े हैं, मेरे पास ये ड्रेसेस नहीं है, उसके पास ये वाली गाड़ी है, मैं आने वाले वक्त में ऐसा मोबाइल फ़ोन लूँगा और मैं ये करूँगा, मतलब एक इमेजिनरी। और होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हैकिंग, सोशल मीडिया के थ्रू जैसे ही लोगों ने तरक्की की तो साथ ही साथ एक तबका ऐसा उठा जिसने हैकिंग स्टार्ट कर दी। हैकिंग से होता क्या है, आपकी आईडी हैक हो सकती है, आपका पर्सनल डेटा जो है वो लीक हो सकता है, आपकी पिक्चर्स, कुछ भी सेफ नहीं है सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट इज फ्रॉड। फ्रॉड होता है, जो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं उन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि दराज 11/11 अभी सर ने एक अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि 2011 में मैंने इस तरह से प्रोडक्ट खरीदी और वो जब मंगवाई तो इस तरह से निकली। तो फ्रॉड, इस चीज़ को सोशल मीडिया पे फ्रॉड भी बहुत कॉमन है और आप फिर उन्हें पकड़ नहीं सकते, जो चीज़ आ गई उसे एक्सेप्ट करो। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिसको सिर्फ लाइक्स, क्लिक्स और व्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि लाइक्स बढ़ जाए, क्लिक्स बढ़ जाए हमारी वेबसाइट पे, तो उस वजह से गलत हेडिंग्स, थंबनेल्स देकर और वो इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है, हालांकि अंदर मटेरियल ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन में और फेक न्यूज़ में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी इशू, वही मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। प्राइवेसी इशूज़ का मतलब ये है कि आपकी कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे प्राइवेट नहीं है, ये आपको लगता है कि आपने उसका पासवर्ड लगाया और वो पासवर्ड सिर्फ आप ही के पास है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मॉनिटर हो रहे हैं, आपकी आईडी है, आप मॉनिटर हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही होती हैं एजेंसीज और फेसबुक की अथॉरिटीज़ जो हैं। Social media plays a significant role in spreading religious, political message and the socio-economic development. ये तीनों चीज़ें मैं अपने टॉपिक में कवर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर बताती चलूँ कि रिलीजियस और पॉलिटिकल मैसेजेस जो हैं, जो पॉलिटिकल कैंपेन्स चलती हैं, इसमें सोशल मीडिया का भी पार्ट होता है। जितनी ज़्यादा तरीके से आप अपनी पॉलिटिकल कैंपेन, जितना ज़्यादा मीडिया आपको कवरेज देगा, जितना ज़्यादा मीडिया कवरेज देगा उतनी ज़्यादा ऑडियंस आपके पास आएगी। तो पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से इस तरह से आपका जो सोशल मीडिया है वो आपको बेनिफिट देता है। थैंक यू। वेरी वेल। आपने थोड़ी सी मिस्टेक की है, इसमें पिक्चर है आपकी डिसएबिलिटीज, मैंने कहा था साथ हेडिंग ले दो, आपने लास्ट इसको बैक कीजिए अपने प्रेजेंटेशन को। हाँ, ये पिक्चर से, पिक्चर के साथ साथ जो आप डिसएडवांटेज जिस पॉइंट पे बताना चाह रही, तो नंबर 1 नंबर 2 हेडिंग आपने लिखनी चाहिए। ये मैंने साइबर बुलिंग डिफाइन किया तो उसकी पिक्चर डाल दी, पिक्चर तो डालती, साथ एक हेडिंग भी लिख लेती जो योर टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने इतने सारे डिसएडवांटेज एडवांटेजेस जो कि डिफाइन किए, एक बड़ा फायदा जो कि हमारी इकोनॉमिक में बहुत फायदेमंद है, बड़ा आप कह सकते हैं सोशल मीडिया के ग्रेट एडवांटेजेस है, तो वो कमान हमारी कॉम के लिए बेसिकली क्या वाइटल रोल प्ले कर रहा है? वाइटल रोल ऐसे प्ले हो रहा है कि जो हमारी यूथ है आजकल, जो एजुकेटेड, जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं हमारे से, इन्हें मेरिट पे यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती हैं। हमारा सोशल इशू है। इकोनॉमिक लेवल पे किस तरह से काम करता है, हमारी यूथ जब अप्लाई करती है फॉरेन कंट्रीज में तो उनको फॉरेन हायर किया जाता है, वो उनकी स्किल्स, एबिलिटीज देखते हैं, उनको रिक्रूट जब करते हैं, तो ये इस तरह से हमारे इकोनॉमिक लेवल पे भी काम करता है। वो तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और आपने मूव किया, किसी पर्सन ने यहाँ से अदर कंट्री में मूव किया तो हमारी इकोनॉमी को डेवलप नहीं हुई है। बात ये कि सरमाया जो होता है वो अपने मुल्क में भी तो आता है, वो भी आता है, लेकिन बात ये कि आपकी अपनी कर्म को ये क्या फायदेमंद है यहाँ पे रहते हुए एजुकेशन के हवाले से। Now I would like to call Mr. Nauman Khan. His topic is marketing.
अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद नुमान खान। इस प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के मुताबिक मुझे एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर देनी है, दैट्स फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग को हम दो हिस्सों में पहले कैटेगराइज करते हैं। पहला हम कॉन्सेप्ट लेते हैं ओल्ड मार्केटिंग से, और ओल्ड मार्केटिंग के बाद हम उसको मतलब कन्वर्ट कर देंगे मॉडर्न मार्केटिंग में। पहले ओल्ड मार्केटिंग को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ओल्ड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमें ये बताते थे कि हमारे पास जो था वो स्केल लिमिटेड था प्रोडक्शन का इन पास्ट, यानी कि इन पास्ट में हमारे पास आप ये कह सकते हैं इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स आप इसको जो था नाम दे सकते थे मोनोपोली का, जिसको हम अजारादारी भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्रोड्यूसर था, मैन्युफैक्चरर था, बनाने वाला था, उसकी अपनी चॉइसेस थी, अपने लाइक्स थे, अपना डिजाइन था, अपना फैशन था। मतलब लिमिटेड स्केल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था। पहला पॉइंट ऑफ व्यू प्रोड्यूसर के लिंक से था और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर के लिंक से था। मतलब दोनों के लिंक के मुताबिक लिमिटेड स्केल देखा जाता था। लेकिन हम अगर आज के दौर की बात करें और आज के दौर की मार्केटिंग की बात करें तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कस्टमर्स को देखा जाता है उसकी डिजायर्स के मुताबिक, वो क्या चाहता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और हम अगर आज की मार्केटिंग को डिस्क्राइब करेंगे तो वो परफेक्ट कंपटीशन की तरफ जाती है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर जो मॉडर्न मार्केटिंग है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक लॉजिक है। उस लॉजिक को हम नाम देते हैं यहाँ पर अटेंशन। यानी कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है अटेंशन का। याद रखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। किसी भी चीज की अटेंशन लेने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, दैट्स कॉल्ड 86,400। आप लोग परेशान हो गए हो क्या? दैट्स 86,400 हमें यह कॉन्सेप्ट बताता है कि मार्केटिंग आज के दौर में एक सेकंड मायने रखती है। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होगा? 3600। और 1 दिन में कितने घंटे होगा? 24। अगर आप 3600 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से तो आपके पास वैल्यू जो क्रिएट होती है, एक्यूमुलेट होकर वो 86,400 होती है। दैट्स सेकंड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेकंड मिस कर दिया, मार्केटिंग की रेस से बाहर। परफेक्ट कंपटीशन है ना, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, चॉइसेस हैं, लोगों के पास चॉइस है। अगर आप कहीं गलती कर देते हैं, दूसरा कॉम्पिटिटर आपकी मार्केट को खराब कर सकता है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या कह सकते हैं? अटेंशन। यानी कि एक एडा का कॉन्सेप्ट लेते हैं, AIDA। अगर हम इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बात करेंगे तो पहले अटेंशन, किसी भी चीज की अवेयरनेस आपको दी जाए। सैमसंग मोबाइल यूजर्स हैं आप सब। आज से पहले तो सैमसंग नहीं था, सैमसंग की अवेयरनेस आई है तो फिर आप लोगों ने खरीदा। पहले तो अगर हम उसको इनिशियल पॉइंट से लेके आए तो अवेयरनेस के लिए अटेंशन थी। आपने देखा, अवेयर हुए, मार्केट्स में मोबाइल्स आए, मोबाइल्स देखने के बाद आपने कहा कि नहीं ये मोबाइल बहुत अच्छा है। जो प्रीवियस मोबाइल यूज कर रहा था उसके मुताबिक ये मोबाइल अच्छा है, तो अटेंशन बन गई। अटेंशन के बाद आपको उसके फीचर्स बहुत अच्छे लगने लगे, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिवेलप हो गया। इंटरेस्ट डिवेलप होने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारी डिजायर्स। हमारी डिजायर्स के मुताबिक वो प्रोडक्ट आती भी है या नहीं। अगर हमारी वो डिजायर्स पे प्रोडक्ट आ जाती है इन सेंस ऑफ रेंज, हम हर इंसान की रेंज अलग अलग हो सकती है, उसको हम आगे इन डिटेल में स्टडी कर लेंगे। उसके बाद डिजायर के बाद वो हमारे लिए एक एक्शन बन जाता है। अगर हम आगे जाएं तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। एक प्रोड्यूसर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, याद रखिएगा। ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी। आज के दौर का प्रोड्यूसर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बड़ा क्लियर होता है। उसको मार्केट अप्रोचेस का अंदाजा होना चाहिए थ्रू सेलमैनशिप। उसका जो अगर देखा जाए जो काम करके दे रहा होता है वो सेलमैनशिप लेवल पर जाके करके दे रहा होता है। सेलमैनशिप लेवल पर उसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक प्राइमरी लेवल और लाइक सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी लेवल की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, जो एक सेलमैनशिप अपने नजरिए से, अपनी रिसर्च से, अपनी थीसिस से हमें पेश कर दे तो प्राइमरी लेवल पर आके बन जाती है सेलमैनशिप के लिए। और अगर वो सेकेंडरी लेवल पर आएंगी, अगर वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब किसकी बात कर रहा हूं, सेलमैन की, अगर सेलमैन अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे किसको, प्रोड्यूसर को, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं फॉर द सोसाइटी।
सोसाइटी के अंदर देखा जाए तो सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को टेस्टिफाई करने के लिए। हम मुख्तलिफ सर्वे कंडक्ट करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं हमारी प्रोडक्ट को लोग किस लेवल तक लाइक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्या डिजाइन है और हमारे पास ऐसी कौन सी लैग पॉइंट्स हैं जो हमारे कस्टमर को डिसएग्री कर रही हैं और वो उनको मुतमईन नहीं कर रही। तो हमारे लिए क्या होगा, नई अपॉर्चुनिटीज। याद रखिएगा, सैमसंग मोबाइल लाख का भी बनाता है, सैमसंग मोबाइल 50,000 का भी बनाता है, सैमसंग मोबाइल 25,000 का भी बनाता है। नेक्स्ट चॉइसेस, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर अपनी प्रोडक्ट को कामयाब करना है तो 3 एजेंटों के सामने रखना होगा, एलाइट क्लास भी, मिडिल क्लास भी और वो लेवल जो स्टूडेंट्स लेवल हैं जो हमारे हैं। अगर बात की जाए नेशनल इकोनॉमी के हवाले से, तो नेशनल इकोनॉमी के लिए अपनी प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स लिए जाते हैं। अपनी प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स लिए जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट एडवर्टाइजमेंट करवाएं। विराट कोहली सबको जानते हैं, जिंदा दिल क्रिकेटर। ये नहीं देखेंगे कि वो इंडियन क्रिकेटर है, हम ये देखेंगे वो एक क्रिकेटर है। वो क्रिकेटर ब्रांड एम्बेसडर है मुख्तलिफ ब्रांड्स का। वो ब्रांड्स पहनता है और उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको देखते हैं, हम पसंद करते हैं। नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर है, नाइकी से इंप्रेस होकर हम खरीदते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली। एक्सपर्ट एडवर्टाइजिंग हो गई। इसके बाद हमारे पास बात की जाती है प्रोस्पेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट। हम लोग ऐसे कौन से पॉइंट गलती कर रहे हैं, किन पॉइंट्स पे उनको हम इंप्रूव कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए से। अब बात करते हैं यहाँ पर मिक्स पीस पे। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्ट 2 तरह की होती है, एक सर्विस लेवल पर होती है और एक गुड्स होती है। गुड्स यानी कि परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहा जा सकता है, सर्विसेज हो सकती है। नंबर 2, प्राइस। प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, डिटेल में मैं पीछे बता चुका। प्राइसेस, याद रखिएगा, प्राइसेस में आप बहुत धोखा दिया जाता है। बाटा पे जाते हैं आप 10,999, 11,999 और प्राइस पॉलिसीज। इसका मतलब होता है कस्टमर के साथ मेंटली खेला जाता है, दैट्स कॉल्ड प्राइस पॉलिसी। उस पर बात की जाती है प्लेस। अब फॉर एग्जांपल मैं ब्रांडेड चीजें, हशवा प्लेस जूते, अगर मैं हफ्ता बाजार में जाके बेचना शुरू कर दूं, बिकेंगे? कभी भी नहीं बिकेंगे। अपने ब्रांडेड जूते मैं हफ्ता बाजार में जाके बेचूंगा, उसके रेट भी मिलेंगे मुझे। मेकअप में अगर ब्रांडेड मेकअप जुमरार बाजार में जाके बेचूंगा, बिकेगा? नहीं बिकेगा। याद रखिएगा, प्राइसेस के लिए प्लेस के लिए बहुत मैटर करती है अपनी एडवर्टाइजमेंट। प्लेस के लिए क्यों बात की जाती है? अब अगर मैं बॉयज की बात करूं, बॉयज मुख्तलिफ वैरायटीज यूज करते हैं। डेनिम के लिए परचेजिंग करने के लिए कहां जाना है? हमें पता है लिवाइस पे जाना है, डेनिज्म पे जाना है। इसके अलावा हमें पफर्स खरीद रहे हैं, पफर खरीदने के लिए कौन सा बेस्ट आउटलेट है? हम वहां जाएंगे। हम चाहते हैं कि चेक एंड जॉन्स चले जाएं, बहुत अच्छा आउटलेट है। इसके अलावा जूतों की बात की जाए तो जूतों के लिए हमारे पास अपनी अलग प्लेसेस होती हैं, या लोगों से हम इंप्रेस होते हैं कि ये चीज आपने कहां से ली है, वो प्लेस हमें रिकमेंड किया जाए या हम उसको मार्केट अप्रोच करके ढूंढते हैं। प्रमोशन, याद रखिएगा, प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। एक जबान है, दिखेगा तो बिकेगा, अगर दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। प्रमोशन बहुत जरूरी है। अब यहां पर कुछ पॉइंट रखे हैं मैंने जो मार्केट स्ट्रेटेजीज को रिलेट करते हैं। पहले पॉइंट के मुताबिक, व्हेन डू द कस्टमर बाय, हमें ढूंढना है वो कस्टमर के, एक कस्टमर जैसे मैंने बात की वो सिंपल सैलरी वाला पर्सन है, उसका शॉपिंग का क्राइटेरिया किस लेवल पर है, किन महीनों में वो शॉपिंग करता है, उसके मुताबिक पब्लिसिटी की जाएगी, एडवर्टाइजमेंट की जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है, वेयर डू द कस्टमर मेक परचेजेस। हमें पता है हमें परचेज करने के लिए कहां जाना है, या नहीं पता है तो हम दूसरों से पूछ लेते हैं कि जी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इस प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली कहां से परचेज किया जाए। अगला पॉइंट है, वो डू द कस्टमर बाय, कस्टमर क्या खरीदना चाहता है। सीजनल है, विंटर शुरू होने वाला, जैकेट खरीदेंगे हम नॉर्दर्न एरियाज घूमने जाएंगे, मुख्तलिफ कपड़े खरीदेंगे, मुख्तलिफ तरह के जूते खरीदेंगे, हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में होता है। ईद होती है, ईद के मुताबिक शलवार कमीज खरीदनी है, रमजान आता है, रमजान के मुताबिक शलवार कमीज खरीदनी होती है, और मुख्तलिफ इवेंट्स के मुताबिक हम अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाट द कस्टमर बाय। व्हाई डू द कस्टमर बाय? ट्रेंडिंग्स,
आजकल हम सब ट्रेंडिंग के भूखे हैं, कुछ शो करता है कोई शो नहीं करता, सबके अपने अपने आइडियल्स हैं। आप लोग मुख्तलिफ किस्म के अप्रेजल्स पहनते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, किसी ना किसी से इंप्रेस होकर कर रहे होंगे ना, दैट्स कॉल्ड ट्रेंडिंग। और ट्रेंडिंग के लिए ये एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम होती है। हाउ डू कस्टमर बाय? आप एक मार्केट में गए, कस्टमर दो तरह के होते हैं। एक कस्टमर वो होता है जो शुरू से माइंडसेट बना के मार्केट में जाता है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खरीदना है। एक कस्टमर वो होता है जो प्री प्लान जाता है, और एक कस्टमर होता है जिसका कोई प्लान नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, Very well, Haman, very well. Haman, day before yesterday, I was teaching in my class who told me, ma'am, I have worked in bank, Yes. but you don't have time? man, repeat the question, is some noises here. Well, you don't have time. Oh, tie. मैम फैलाना भूल गया पर्सनली। You have worked in a bank. या लेकिन मैं पर्सनली अगर बात बताऊं, मुझे टाई पहनना पसंद है। मेरी पर्सनैलिटी को एनहांस नहीं करती वो चीज़ अगर मैं टाई पहन लूँ। तो फिर आपकी जो डिजायर है उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इंशाल्लाह इस चीज़ पे काम करूँगा। गुड लक। थैंक यू। It was good, Naman. Now I would like to call Ms. Shehla Jahangir, and her topic is social media. Assalamualaikum. This is Shahla, and today I am presenting my presentation, and my topic is social media. Definition of social media. सोशल मीडिया एक ऐसी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है जहां हम डिफरेंट तरह के कंटेंट को शेयर करते हैं। डिफरेंट तरह के वहाँ पे बहुत से डिफरेंट तरह के यूजर्स क्रिएट होते हैं, और सोशल मीडिया इज अ I would like to call Mr. Arshad Siddiqui. His topic is leadership. Mohammad Yusuf. His topic is social media. Assalamualaikum, dear fellows and the faculty. First of all, I would like to introduce myself. My name is Mohammad Yusuf, and I am the student of Financial Accounting Group D, and my topic is social media. First of all, we will know what is media. According to Malcolm X, the media is the most powerful entity on earth. They have a power to make innocent guilty and to make guilty innocent, and that's power because they control the mind of the masses. And the definition of media. Media is the mass communication interfaces including print and broadcast, and individual employed in the communication industry is called media. Now we have types of media. We have certain types like television, radio, newspapers, magazines, films, and social media. And my topic is social media. The role of social media. Social media has some roles like sharing of information, build societies,
imparts awareness against good and the bad, promote literacy and promote education and entertainment. Now the sound principle of social media. Not to mislead public, sharing of accurate information, clearing understanding of the right of freedom of expression versus the right of an individual for his or private life. These are the graphs for the social media network user worldwide, and now there is currently 2020 3.6 billion users are using social media. And now the active user of social media is Facebook is the top of like 2.6 billion people are using Facebook, and next second one YouTube and WhatsApp. And now we will know कि WhatsApp और Instagram भी जो है Facebook ही कंट्रोल कर रहा है। सोशल मीडिया का जो रोल है कोविड-19 में वो काफ़ी अहम रहा है। उसमें जैसे हमारे कंपनीज और इंडिविजुअल जिसने सोशल मीडिया हम लोगों ने काफ़ी यूज़ किया है कि लाइक लॉकडाउन में जो कंपनी जो सारे एम्प्लॉयज़ को बुला नहीं रही थी, तो काफ़ी कम एम्प्लॉयज़ जा रहे थे और कुछ एम्प्लॉयज़ जो घर में बैठ के काम करते थे। जैसे मैं भी ये अपने घर में बैठ के जूम के थ्रू प्रेजेंटेशंस हो गई या डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो हमें जूम के थ्रू जो सबमिट कर रहे थे, बॉस के साथ बैठ के कंप्लीट करते थे हम लोग। नेक्स्ट वन इज द पीपल टू सोशल मीडिया नॉट फॉर ओनली एंटरटेनमेंट, और दूसरी इन्फॉर्मेशन वायरल और फेक न्यूज़ आपको तो पता है, जैसे फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है कि लाइक वन कि जब कोरोना चला था उसी टाइम पे एक हेक्टाकोन वायरस का जो है फेक न्यूज़ जो है वायरल हो गई थी कि हेक्टाकोन भी फैल रहा है, तो जिससे काफ़ी लोग पैनिक हो गए थे। फिर उसके बाद आया कि भाई हेक्टाकोन इस तरह नहीं फैलता है, काफ़ी जो है अवेयरनेस है लोगों के अंदर, मतलब फेक न्यूज़ जैसे तरीके से होती है। और इंटरटेनमेंट के लिहाज से आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे इंटरनेट ओनली जस्ट अर्तगुल किसी ने अर्तगुल ने हमने एक चीज़ सीखी है, सोशल मीडिया दूर से सलाम करना सीखा है कि बस हाथ दिन पे रख के और दूर से हम एक दूसरे सलाम कर सकें। द थर्ड वन इज़ मार्केटिंग। मार्केटर्स ने जो है सोशल मीडिया में जो है अपनी जो है स्ट्रेटजीज ले लें या तो फिर उनके जो है स्किल्स ले लें, काफ़ी ज़्यादा डेवलप किए, क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए मार्केटर्स को इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो वो अक्सर जो है अपनी मार्केटिंग जितनी भी ज़्यादा मार्केटिंग सोशल मीडिया पे वो कर सकते थे, तो उन्होंने उतनी ज़्यादा मार्केटिंग सोशल मीडिया पे करी है अपनी, जितनी ज़्यादा उससे जो फ़ायदा उठा सकते थे। नाउ द सोशल मीडिया प्ले आपको पता है कि एजुकेशन में सोशल मीडिया ने कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लाइक अपना जूम ले लें और लाइक कोई क्लासरूम क्या ऑनलाइन क्लास होना है या सब अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना है, तो इसमें जो है सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अनदर साइड ऑफ सोशल मीडिया लाइक डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे यहाँ तोहमत लगाना एक दूसरे पे या इल्ज़ाम लगाना बहुत ईजी होता है। उसके बाद हमारा आता है गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को बुलिंग करना, एक दूसरे को बोल दिया भाई ये वो सोशल मीडिया की रहते हैं सामने, तो ही सोशल मीडिया जिसमें जो आ जाते हैं आपस में एक दूसरे को बोलते थे। नाउ द विजन ऑफ प्राइवेसी, जैसे उन्होंने बताया कि आपकी कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं है सोशल मीडिया पे। हम समझते हैं कि भाई हमने पासवर्ड लगा दिया है या हमने उस पर लिखा ओनली मी, तो बस ये मुझ तक ही महादेव है, नहीं तो ये आप तक महादेव नहीं है, ये आगे जो जिसके पास बन रहा है तो वहाँ पर उसके पास भी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। नाउ द आउट ऑफ एब्यूसिव, जैसे सबको पता है कि ज़्यादा देहाती वगैरह की किसी की कोई चीज़ हैक करके मतलब ब्लैकमेलिंग करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, ये तो बहुत ज़्यादा चलता आ रहा है। उसके बाद वल्गैरिटी, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। और दूसरा रूमर मॉन्गरिंग कि अफवाह कि कोई बात करना सुनी और कितनी ज़्यादा आगे निकल जाती है, कितनी ज़्यादा फैल जाती है बातें सोशल मीडिया के थ्रू, ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं नॉर्मली। नाउ द पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स होंगे तो इसमें जो है डिसएडवांटेजेस होंगे। नाउ द फर्स्ट ब्रॉडन कनेक्शन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि हम लोग जो है दुनिया से इजीली जो है कनेक्ट हो जाते हैं, हर जगह दुनिया में किसी भी कोने पे हो हम लोग इजीली सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं कि हमें कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हमें किसी कोई दूर बाहर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो उससे हमें कनेक्ट करना है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू इजीली हम उससे कनेक्शन जो है कर सकते हैं। नाउ द सेकंड वन इज डेवलप कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल, हम लोग अपनी स्किल्स जो है सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है प्रमोट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मुझे कुछ सीखना है तो डिजिटल स्किल्स हो गया, उसके थ्रू सोशल मीडिया पे मैं अच्छे से यूट्यूब वीडियोस हो गई, उसके थ्रू मैं अपना जो है स्किल्स जो डेवलप कर सकता हूँ। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है ज़्यादा सी बातें वो भी डेवलप हो सकती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। नाउ द डेटा इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज ईजिली, क्योंकि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन डेटा अगर हमें किसी को देनी होगी तो हम इजीली जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, इजीली भेज सकते हैं, लाइक ईमेल, लाइक अदर दूसरी साइट्स के हम लोग इजीली जो है सोशल मीडिया को अवेयर कर सकते हैं इसमें। और इन्फॉर्मेशन कैन बी डायरेक्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो हम लोग जो है ज़्यादातर लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसके हवाले से। जितने भी लोग हम जैसे हम चाहे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दे, ग्रुप पे हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हमने शेयर कर दी, लाइक फेसबुक, लाइक ट्विटर, हम लोग इजीली जो है सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो भी हमें शेयर करनी है। नाउ द सोर्स ऑफ इम्प्रूविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस सोशल मीडिया के थ्रू इजीली जो है इम्प्रूव कर सकते हैं।
नाउ द बिजनेसमैन जो है अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, मार्केटिंग करके या सोशल मीडिया के थ्रू जो है बिजनेस करके इजीली उसका बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है, और मेन इसमें मार्केटिंग है। नाउ द रिकमेंडेशन इसकी आती है, तो रिकमेंड हमें सबसे पहले जो एस्टेब्लिश क्लियर एंड हेल्थी बाउंड्रीज अबाउट सोशल मीडिया डिवाइसेज, जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे राउटर वगैरह डिवाइस होगी, उसकी जो है हमें रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, और हम जो अपनी फेसबुक वगैरह एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन होती है उसकी हमारी सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। जैसे आजकल 2 वे सिक्योरिटी वाला सिस्टम चल रहा है, तो इस लिहाज से हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि हैकर्स बहुत हैं, हैकर्स तकरीबन जैसे 10 बंदे 10 में से 2 तो हैकर हैं। आजकल हैकर्स बहुत हो गए मार्केट में। नाउ द एजुकेट योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर डूइंग ऑनलाइन, कि हम ऑनलाइन क्या करें हमें पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास कोई लिंक आजकल जैसे चल रहा है, एक नॉर्मल मैसेज है BISP का कि भाई आपके जो 35,000 निकले आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको 35,000 रुपये मिल जाएंगे, जैसे फेक न्यूज़ वगैरह इस टाइप का। और आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपको जो ये मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करना जाहिर सी बात है, क्योंकि एक दफ़ा 2013 में लाइक मेरे साथ हो चुका है कि मेरे पास आया था एक लिंक, तो मैंने उस लिंक पे जो है क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर मुझे उसको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा था काफ़ी टाइम। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ प्लेटफॉर्म वर्क। हमें पता होना चाहिए कि फेसबुक किस लिए यूज़ होता है, ट्विटर किस लिए यूज़ होता है, और इंस्टाग्राम किस लिए यूज़ होता है। तो हमें जो है उनके जो है अपना डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए, किस चीज़ पे हमें क्या कैसे यूज़ करना है, व्हाट्सएप किस लिए यूज़ हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एज अ डिजिटल सिटीजन वी कैन वर्क टुगेदर। मतलब कि आप लोगों को पता है कि आजकल ऑनलाइन में जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को ब्लैकमेलिंग चल रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को तंग किया जा रहा है। मतलब एक मैं बोलना नहीं चाहता हूँ चीज़ें, मगर एक्सपायर जैसे काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हो रही है पिक्चर्स के हवाले से, जिस हवाले से भी, और दूसरी एक्सपायर दूसरी चीज़ों का, तो इस पर जो है हमें जो है एक्शन लेना पड़ेगा डिजिटल सिटीजन। ये हमारी जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट की। हमें गवर्नमेंट में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जाएगी जैसे मेरे साथ कुछ हो रहा है तो मैं चुप करके बैठ जाऊँगा, तो ये इसका हल नहीं है। मुझे इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा, और सबके साथ हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि हम लोग जो है जैसे किसी का गलत हो रहा है तो हम उसके बाद बातें करना शुरू हो जाएंगे कि नहीं यार ये गलत कर रहा है, इसकी गलती इसके साथ हो गया, उसकी बातें नहीं, उसको सपोर्ट करो उस बंदे को। नाउ द कंक्लूजन में जो हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन ये होता है कि मीडिया के थ्रू हम हर जगह जो है ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, हर जगह किसी से बात कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमें भेजनी हो हम भेज सकते हैं लाइक दिस में। और उसके बाद जो हमारा जो आता है अपना ये डिसएडवांटेज वाला, तो उसमें जो है सोशल मीडिया जो है हार्मफुल के लिहाज से, तो उसकी पावर जो है अभी तक हमने नोटिस नहीं किया कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। हम लोग उसको कहते हैं कि यार चलो खैर है कोई नहीं, पर वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो हमें इस पर जो है इसको सीरियस लेना पड़ेगा। और उसके बाद फिर अपने थैंक यू। अच्छी खासी प्रेजेंटेशन थी, कितनी तेजी से आपने एक्सप्लेन को, इतनी जल्दी बोला है, कुछ समझ में नहीं आया। किसी को आया, किसी को समझ में? यस मैम। कोई वर्ड आ गया होगा, मेरे तो समझ में नहीं आया सर। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आपका मटेरियल जो था ना बहुत ज़बरदस्त है। I will mark you 100 out of 100 on the material because you have given some facts and trends of the year-wise what social media does in 2015 and what is going towards in 2021 and 22. It's a very important element of your presentation. But your lack of confidence and lack of knowledge had made a negative impact on your presentation. Yes. असल में सर मुझे जो मैंने आपको बताया था कि मुझे प्रेजेंटेशन तो मिला थी, पर मुझे इसका प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला था मुझे इसकी, तो इसलिए ये शो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वर्क ऑन इट होपफुली एंड प्लीज वर्क ऑन योर ड्रेसिंग। सर मुझे असल में ड्रेसिंग का पता नहीं था, मैंने ये बताया मैं छुट्टी पे था, मैं इसी वीक वापस आया आपसे, आपने जो मेरी क्लास में, तो मुझे नहीं पता ड्रेसिंग प्रॉपर अपना क्या है, मैं हफ्ते की छुट्टियों में लगा हफ्ते से, इसलिए मुझे पता नहीं था कि ड्रेसिंग का प्रेजेंटेशन का पता था, पर ड्रेसिंग का मुझे पता नहीं था इसलिए। नहीं मैं मतलब में एक इशू था, मैंने बताया था उनको पता है एडमिन में। जी 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 एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, आपने अपने फ्रेंड से बाय आप कम्युनिकेशन करें, आप व्हाट्सएप पे करें, आप खुद उसे फिजिकल एसेंट और हमने एग्जैक्ट इट इज़ एक पॉइंट टीचर का आपने नोट करना है कि कल क्या बताया। यस सर, थैंक यू। I would like to call our last participant, Miss Ramsha Kareem, and her topic is leadership.
Assalamu alaikum. This is Ramsha. I'm a student of Financial Accounting Section B, and my presentation is about leadership. So what is leadership? Leadership basically leadership इसमें नहीं हो रहा. वो करंट आपको भी लग गया कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखें. कुछ भी बोलते हैं 2 मिनट का लीडर एक वो होता है जो जिससे जो काम करता है उससे उसके जो भी उसको देख रहे होते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसके काम से इंस्पायर होते हैं. लीडर जो होता है लीडरशिप बेसिकली इज किसी भी काम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को उसके काम को एक सिग्निफिकेंट वे में लेके चलना, उस सिग्निफिकेंट डायरेक्शन में लेके चलना, अच्छी तरह से प्रिपेयर करवाना और वहाँ के जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उनको इंस्पायर करवाना अपने से. मैं बात करूंगी वो आर द लीडर्स. सॉरी मैंने स्लाइड ऐड नहीं करी इसमें. मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दूंगी. द फर्स्ट वन इज आवर होली प्रॉफिट. ऑब्वियसली अनडाउटली he was not, he is the best, greatest leader on the entire universe in the